Today is the 41th day of our Begumpura Bharat Bhaichara Yatra. साथियों, आज हमारी इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 41वां दिन है। Ambedkar with Mala, and another side the women, you people are not allowing a women to sit in our darbar. एक तरफ आप बाबा साहब के सम्मान में उनको माल्यार्पण करते हैं और दूसरी तरफ आप अपनी औरतों को अपनी बीच में बैठने की इजाजत नहीं देते। Because Baba Saheb Ambedkar was saying that the degree of the community depend upon the women's development. जबकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि किसी भी समाज का जो विकास है उसको मैं उस समाज की औरतों ने कितना डेवलपमेंट किया, कितना विकसित हुई, उसके आधार पे मैं सामाजिक विकास को मापता हूँ। You people are not allowing the women to come and sit with us means you are following the Brahmins words, not Baba Saheb Ambedkar words. अगर आप अपने बीच में अपने औरतों को बराबर का दर्जा नहीं देते, इसका मतलब है कि आप ब्राह्मणवादी विचार को मान रहे हो, बाबा साहब के विचारों को नहीं मान रहे हो। One side you people all are saying, some people are, when I came here, some people are saying Jai Bhim, some people are saying Ram Ram. I don't know what is the behind in the Jai Bhim and Ram Ram. If you are Jai Bhim wala, see the upper caste people, that Jai Bhim word will not come. Ram Ram will come. When they see to us, they are saying the Jai Bhim. Why we people are dual mind? जब मैं यहाँ आया तो कुछ लोग जय भीम का संबोधन करते हैं, कुछ लोग राम राम बोलते हैं। हमारे लोग जब ब्राह्मणवादी लोगों के सामने आते हैं तो फिर जय भीम नहीं निकलता, राम राम करते हैं, और जब अपने लोग सामने आते हैं जय भीम। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों पाल रखे हो आप लोग? Dual mind नहीं आ रहा। Dual mind is more dangerous than the ordinary mind. तो ये स्पष्ट मानसिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक दोहरी मानसिकता होती है। But when you go to Brahmins, not Brahmins, upper caste people, they are only saying Ram Ram. They are not saying Jai Bhim. अगर आप सवर्णों के बीच में जाओगे तो वो सिर्फ राम राम ही करते हैं, वो जय भीम नहीं करते। When you go to the Christian people, they are saying praise the Lord. अगर आप क्रिश्चियनों के बीच में जाओगे तो उनका जो संबोधन है प्रेज द लॉर्ड करते हैं वो। When you go meet them Muslims, they are saying that Salam Alaikum. अगर आप मुसलमानों के बीच में जाओ तो वो सलाम वालेकुम करके सलाम करते हैं। When you meet some Sikh people, they are saying that Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. अगर आप सिखों के बीच में जाओ तो वो उनका जो संबोधन होता है वो कहते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। When it comes to our scheduled caste concern, our people are acting according to the caste. लेकिन जब हम अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में आते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है वो जाति देख के व्यवहार करते हैं। Why you are not living independently? अगर ब्राह्मण होगा तो जय राम जी कर लेंगे, अगर कोई खुद का जाति का होगा तो जय भीम कर लेंगे। क्यों आज तक हम स्वतंत्र क्यों नहीं हो पाए अपनी बात को कहने में? Because Guru Ravidas was saying, we are praising Guru Ravidas. Guru Ravidas was saying that dependent is a sin, power. Dependent is a power. गुरु रविदास जी जो हम आपके बीच के समाज से ही पैदा हुए संत हैं, उन्होंने कहा है कि पराधीनता पाप है, जान लेहुरे मीत। मतलब पराधीनता को, दूसरे के ऊपर अधीन रहने को उन्होंने पाप बताया है। But we are living in the independent country, but dependent to others. लेकिन आज हम एक स्वतंत्र देश में दूसरों के गुलाम बन के जी रहे हैं। When we will get independent, one side we are praising Guru Ravidas, and another side we are dependent to the upper caste people. When it will change?
एक साइड हम स्वतंत्रता की बात करने वाले गुरु रविदास को मानते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उससे ग्रसित है, तो ये इसमें बदलाव कब आएगा? But I am very sorry to say that whoever following Baba Saheb Ambedkar, they are not independent. They are dependent. मैं बड़े खेद के साथ कहता हूं कि जितने भी हमारे बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, आज भी गुलाम है। Because in village also, you are talking about Baba Saheb Ambedkar and dependent to the Manuwad. In the so-called leaders, the Neta, bada Neta, they are dependent to the Manuwadi parties. They are begging for 1 seat, 2 seat. They are all doing sin according to the Guru Ravidas doctrine. एक तरफ आप बाबा साहब की जयकार करते हो, दूसरी तरफ मनुवाद का जो व्यवस्था है उसके गुलाम हो। ये बाबा साहब का मिशन नहीं है और इसका कारण ये है कि जो हमारे समाज के नेता हैं वो ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं। इस वजह समाज आज भी गुलामी में जकड़ा हुआ है। अगर हम गुरु रविदास जी की भाषा में कहें, ये हमारे जो तथाकथित नेता हैं ये पाप कर रहे हैं। Throughout the country, the Ambedkarists are all dependent to the Ambedkarist leader are all dependent to the Manuwadi party for 1 seat, 2 seat. It is not only here, throughout the country. तो हमारे पूरे देश में जो तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं, पूरे देश में मनुवादी जो राजनीतिक दल हैं, उनसे 1 सीट 2 सीट के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं उनके ऊपर। But Kanshiram was not like that. लेकिन कांसीराम जी का जो मिशन है, कांसीराम जी जो है वो इस तरीके के नहीं है। He understood Guru Ravidas doctrine. He wanted to make our people as a independent, not dependent. जो मान्यवर कांसीराम जी थे वो जो रविदास जी का सिद्धांत था उसको उन्होंने समझा और उन्होंने अपने लोगों को गुलाम नहीं, पराधीन नहीं, शासक बनाने के और अग्रसर किया। Congress party became a dependent. BJP party became a dependent to Kanshiram. But Kanshiram was Paripurna Swatantra. He was consolidate all the people. He was like a Neta, Bada Neta, Mahapurush. तो उस जमाने में कांग्रेस भी कांसीराम जी के चरणों में लेट गई थी, भाजपा भी, लेकिन कांसीराम जी का जो दिमाग था वो पूरी तरीके से स्वतंत्र था और वो जमाना था जब कांसीराम जी पूरे देश में एक बहुजन के लीडर के तौर पे उभरे। He was the true follower of Guru Ravidas. क्योंकि वो गुरु रविदास के सच्चे अनुयायी थे। But nowadays, this is the first time in our yatra staying in the village. This is the first day. ये पहला दिन है, इन 41 दिनों में पहला दिन है जब हमारी ये stayed in the scheduled caste village. शेड्यूल कास्ट लोगों के गांव में रुकी है। Because earlier I stayed in the Adivasi villages, OBC villages. क्योंकि इससे पहले हम कहीं आदिवासियों के गांव में रुकते हुए आए हैं, कहीं ओबीसी समाज के गांवों में रुकते हुए आए हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट बहुसंख्यक आबादी वाले गांव में मेरा हम लोगों का पहला निवास। The village concept not emerged from our forefathers. It emerged from the Manuwad. ये जो ग्रामीण व्यवस्था है ये हमारे बुजुर्गों की देन नहीं है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की देन है। ग्रामीण व्यवस्था, Brahmin Vyavastha is not concept of Buddhism. That Gaon concept, the village concept not emerged from the Buddhism. So that's what sometimes we are Mohenjo-daro and Harappa town, Nagar,
and Keeledi Nagar. When we go for the archaeological, a lot of people are doing the archaeological survey. They are finding a lot of towns, not villages. ये जो ग्रामीण व्यवस्था है ये तथागत बुद्ध की भी के टाइम की भी नहीं है। उनके टाइम की अगर हम इतिहास में बात करें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यताएं प्राचीन, सबसे प्राचीन जो सभ्यताएं थी वो शहरी सभ्यताएं थी, और वो शहरी सभ्यताएं अभी जो ऐतिहासिक अध्ययन हो रहे हैं उनके हिसाब से वो शहरी सभ्यताएं हमारी सभ्यताएं। Until village is alive, the casteism is also alive. ये चूंकि ये जो ग्रामीण व्यवस्था है ब्राह्मणवादी लोगों की देन है, इसलिए जब तक ये ग्रामीण व्यवस्था इस देश में रहेगी तब तक जातिवाद रहेगा। If the casteism is alive, untouchability is also alive. जब तक जातिवाद रहेगा तब तक छुआछूत भी रहेगा। So village concept emerged from the Brahminical forces, not from our own concept. Our people's not, it is not our people's concept. ये जो ग्रामीण व्यवस्था है ब्राह्मणवादी लोगों की व्यवस्था, ये हमारे लोगों की दी हुई व्यवस्था नहीं है। So that's what Gandhi was saying, that villages are our backbone. इसलिए गांधी ने कहा था कि जो गांव है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। Because he was saying, he was wanted to sustain the casteism. So that's what he was saying, that backbone. क्योंकि वो इस जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए वो कहते थे कि ये जो गांव है वो हमारी रीढ़ की हड्डियां। But BDP is wanted to break the backbone of the village. लेकिन जो हमारी बहुजन द्रविड़ पार्टी है वो इन मनवादियों की जो बैकबोन है, कमर की हड्डी है, जातिवाद के गढ़ ग्रामीण, उस व्यवस्था को खत्म करेगी। So that's what we are traveling throughout the country, the concept of Begumpura Bharat. यही कारण है कि पूरे देश में बेगमपुरा भारत संकल्पना लेके घूम रहे हैं। The concept Begumpura behind that Guru Ravidas had given this concept to us. ये जो बेगमपुरा भारत की जो संकल्पना है ये सदगुरु रविदास महाराज की दी हुई संकल्पना है। He wanted to see this country as a casteless society, classless society, economic justice, social justice, no terrorism, no untouchability. He wanted to make this country as a Begumpura. तो गुरु रविदास जी इस देश को जाति विहीन, वर्ग विहीन, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कर मुक्त, कोई जाति भेदभाव नहीं, इस तरीके का जो एक देश हो, एक शहर हो, उसकी संकल्पना गुरु रविदास जी महाराज करते थे, जिसको उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। But we people are not working towards that direction, his direction. लेकिन अभी हमारे लोग, हम लोग इस पे अभी तक हम लोगों ने काम नहीं शुरू किया। But we are talking about the lot of our society's problem. We are not seeing our future. अभी भी हम अपनी समाज की समस्याओं पे ही बात कर रहे हैं। हमारे पीढ़ियों का क्या भविष्य होगा उधर अभी तक हम नहीं सोच रहे हैं। How our people are, our children are living in the future. How they will live in the future. We have to think about that. तो इसलिए हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भविष्य में कैसा जीवन यापन करेंगी, इस विषय में भी हमको सोचना पड़ेगा। Because last 75 years during the Britishers period, our people got some development. But during this Manuvadi period, last 75 years, our people are living worse than animal. तो अगर आप देखें तो जो भी आज हमको हक अधिकार मिले हैं वो अंग्रेजों के राज में मिले हैं, लेकिन इन 75 स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों में जो भी अधिकार मिले वो भी हमसे छीने जा रहे हैं लगातार। Still now, when you go, everybody in villages, everybody having the mobile. In every mobile, if you see in your mobile,
In lot of states, atrocities. Our people are facing lot of discrimination, atrocities. Everywhere, our people are not living safely. So, what is the solution for that? आज गांव-गांव में हम सबके पास मोबाइल फोन है। आप उसमें सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज देश के हर कोने में हमारे समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हर दिन हो रहे हैं। अब सवाल है कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। You are talking about the problems when you open the YouTube or Facebook or WhatsApp. You are discussing about this area. Our man attacked by the upper caste. That state, another upper caste people attacked our women. Even 1 week before, when a woman went to take the bath in the river, the upper caste people beaten us. So these are all, every day you are discussing about the present problem. तो जब भी मैं मोबाइल फोन खोल के देखता हूं तो जो सोशल मीडिया है, इसमें आप लोग हमेशा जो वर्तमान समस्याएं हैं उसमें ही डिस्कशन करते रहते हो कि कहीं किसी सवर्ण ने किसी को मार दिया, किसी को काट दिया। अभी एक हफ्ते पहले एक खबर बड़ी प्रसारित हो रही थी कि एक शेड्यूल कास्ट की महिला एक नदी में नहाने गई तो सवर्णों ने उसको पीटा। तो इस तरीके से अभी हमारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ मुद्दों पे हो रहा है। But Guru Ravidas was seeing about our future. He is dreaming about our future, but you are talking about what are the issues going on around us. लेकिन हमारे गुरु रविदास महाराज ने एक भविष्य का सपना देखा था कि हमारा कैसा देश होना चाहिए। 600 years before, he was dreaming how to make our country, how to make our people, build our people. और 600 साल पहले, आज से 600 साल पहले उन्होंने ये सपना देखा था कि कैसे हमारा देश होना चाहिए, कैसे हम अपने लोगों का उत्थान कर सके। लेकिन आज हमारे लोग कुछ मुद्दों पे ही अटके हुए हैं। If you think about, if you go through Kanshiram formula, Kanshiram ideology, we can easily fulfill the dream of Guru Ravidas. तो अगर आप मान्यवर कांसीराम साहब की बहुजन विचारधारा पे चलते हो तो हम बड़ी आसानी से रविदास जी के बेगमपुरा सपने को पूरा कर सकते हैं। You don't see more, you don't see or don't forward or don't discuss about wherever our people facing the problem. Let you think about how we make this country, how we can build our children future, a bright future. You can think about that. Then automatically you also start to work for the future. तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग ये जो रोज की घटनाओं में जो उलझे हुए रहते हैं, इससे ध्यान हटाइए और इस देश को कैसे डेवलप करना है, आने वाली पीढ़ी को कैसे सुरक्षित और उसका भविष्य कैसे उज्जवल रखना है, इस विषय में सोचना शुरू करिए। अगर ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो अच्छा काम शुरू करना अपने आप शुरुआत हो जाएगी। Only one weapon in your hand. If you want to build a Begambura Bharat, there is only one weapon in your finger. This finger is your weapon, not sword. अगर आप इस देश को बेगमपुरा भारत बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, आपकी उंगली, वोट का अधिकार। तलवार उसके सामने बहुत छोटा हथियार है। If you are very honest to your finger, we can easily achieve or make a Begambura Bharat. तो अगर आप समझदारी और ईमानदारी पूर्वक अपनी इस उंगली का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो हम बहुत जल्द इस देश को बेगमपुरा भारत बनाने में सफल हो सकते हैं। I am not happy about you people wear this mala. I don't want any respect from you. I need to be honest to your finger. तो आपने हमारा माल्यार्पण किया, इससे हमें बहुत खुशी नहीं हुई। हम अपना रिस्पेक्ट नहीं चाहते। अगर आप अपने इस वोट के अधिकार का, इस उंगली का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना शुरू करते हैं, मैं समझता हूं वही हमारा सच्चा सम्मान है।
because I am worrying about Guru Ravidas mission है. क्योंकि मैं गुरु रविदास जी के मिशन को लेके चल रहा हूं, उसके प्रति चिंतित हूं. Because this respect will not fulfill Guru Ravidas mission. ये हमारे ऊपर माला हार चढ़ा देने से गुरु रविदास जी का मिशन पूरा नहीं हो जाएगा. Once if you are be honest to your finger, then we will easily fulfill Guru Ravidas mission. जब आप अपनी उंगली का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी हमारे महापुरुषों का गुरु रविदास जी का मिशन सफल होगा. If I am right now I am talking to you, you are thinking about the sensitization is going on. Oh, this is a correct. This is a correct. What Jeevan is saying, it is a correct. But when I go from here, when some other upper caste will come and they do some prachar, your mind becomes to that direction. अभी हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आप लोगों के अंदर से ये बात पैदा हो रही होगी कि हाँ, जीवन जो कुछ बोल रहा है वो सही कह रहा है. लेकिन जब मैं यहां से जाऊंगा, कोई सवर्ण आएगा और वो कुछ बताएगा तो आप हमारी बातों को भूल जाओगे. Because they are not, Savarnas are not followers of Guru Ravidas. Actually, the Savarnas are not following Guru Ravidas ideology or doctrines. क्योंकि जो सवर्ण है वो गुरु रविदास की विचारधारा और सिद्धांत को नहीं मानेंगे. Because one person enough to disturb the whole village. तो ये जो सवर्ण है, एक व्यक्ति ही हमारे पूरे गांव को डिस्टर्ब करने के लिए पर्याप्त होता है. One chamcha get in this village around 500 vote is there. एक vote 200 rupees है. एक liquor bottle है, थोड़ा चा ना रोटी चावल है. सवर्ण जो है वो हमारे ही बीच के एक चमचे को भेजते हैं. वो आएगा, आपको 200 रुपए और एक शराब की बोतल देगा, कुछ चावल दाल की व्यवस्था कर देगा और आपके सब वोट खरीद लेगा. We are not coming with anything. I don't have anything. I am having only Guru Ravidas ideology only we are having. लेकिन हम आपको ऐसा कुछ देने को लेके नहीं आए हैं. हम यहाँ आए हैं सिर्फ गुरु रविदास जी की विचारधारा को लेके. For to that vichardhara, you people are giving a space to sleep, and you people are giving a food, to water to drink and take a bath. So now we are having only ideology, but Savarnas are coming with the money. They are planting money. We are planting ideology. That is a different. हम आए हैं गुरु रविदास जी की विचारधारा को लेकर और कल से आज तक आप लोगों ने हमारे खाने की व्यवस्था की, हमारे रुकने की व्यवस्था की, नहाने धोने की व्यवस्था की. ये अंतर है. जो सवर्ण आते हैं वो पैसे से समाज को खरीदने आते हैं और हम आपको एक विचारधारा देने आए हैं, विचारधारा लेके आपके पास आए हैं. ये अंतर है सवर्णों की राजनीति और हमारी राजनीति. During election time, my words are not in front of you. The Savarnas money is ऊपर, ideology Guru Ravidas ideology बहुत नीचे. लेकिन ये दुख की बात है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो हमारे जो शब्द हैं वो आप लोग भूल जाते हैं. जो सवर्णों का पैसा है वो ऊपर होगा और जो हम कह रहे हैं हमारे जो महापुरुषों की जो विचारधारा है वो नीचे होगी. If 5% in this village very honest to the ideology of Guru Ravidas, 1% is enough, not 5. Everything happened with 1% only. Guru Ravidas won, Phule won, and Ambedkar won. Every miracle, every change happened with 1% only. If 1% honest in this village, the Savarna will not come inside. जितने भी परिवर्तन हुए हैं अपने समय में एक ही व्यक्ति ने शुरू किया है. ज्योतिबा फूले अपने समय में एक व्यक्ति थे, बाबा साहब अपने समय में एक व्यक्ति थे, गुरु रविदास अपने समय में सिंगल ही व्यक्ति थे, कांसी राम सब, जितने भी दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए एक व्यक्ति से ही शुरू हुए. अगर इस देश में इस गांव में
5 छोड़िए, एक भी समझदार व्यक्ति हो जाए तो यहाँ सवर्णों का जो षड्यंत्र है वो नहीं चलेगा। So my message will build some courage to your mind and heart. तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने कहा, जो हमारा संदेश है वो आपके दिल में उत्साह है और ऊर्जा पैदा करने का काम करेगा। At any cost, you don't lose your temper or courageous to these Savarnas. आपके अंदर जो उत्साह है, जो सवर्णों के खिलाफ जो आग है, किसी भी कीमत पे उसको कम मत होने देना। Actually, the two fights, Savarnas wanted to suppress us. We want to liberate us. That is the true difference between Savarnas and ours. यहाँ जो बहुजन द्रविड़ समाज और जो सवर्ण है, उसमें जो मुख्य अंतर है वो ये है कि हम समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं और जो ब्राह्मणवादी सवर्ण ताकते हैं वो समाज को हमारे गाड़ना चाहती हैं। ये हमारे और उनमें जो मुख्य अंतर है वो ये है। We are fighting for equality. They don't allow to come as a equal. हम समाज को एक समता मूलक समाज में बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। So our Kanshiramji ideology will bring the equality based society. So if you are truly following the Kanshira means, you don't forget about election. Election is a war. In democracy, Purana time, there's somebody come from elephant and horse ride. But this time, in democracy, election is a war. So which side you are going to stay? Whether you are going to the Manuvadi side or Guru Ravidas side. तो चूंकि मानवर कांसीराम साहब समाज को एक समता मूलक समाज बनाना चाहते थे, इसलिए अगर आप उनके सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये एक युद्ध है, और जो पिछले जो पहले युद्ध होते थे वो तलवार घोड़े हाथी से होते थे। आज का ये जो युद्ध है इसमें जीत होती है आपके वोट से। ये आपको तय करना है कि इस युद्ध में आप सवर्णों को जिताते हो कि मानवतावादी विचारधारा को, मानवर कांसीराम साहब के सपने को पूरा करने वाले लोगों के साथ खड़े होते हो। ये आपको तय करना पड़ेगा। I am coming here to invite to our side. So that is the purpose of our yatra. तो मैं यहाँ आपको अपनी तरफ आमंत्रित करने के लिए आया हूं। ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। So I hope that you are all with our side. मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारी तरफ हमारा सहयोग करेंगे। Are you ready to come along with our side or Savarna side? क्या आप हमारी तरफ आने को तैयार हैं, सवर्णों की तरफ जाने को तैयार हैं? कौन से साइड है? किस साइड में जाने को तैयार है आप? आपके साइड। Okay. In this, I am very happy to leave for another meeting. Thank you very much. इन्हीं शब्दों के साथ मैं खुशी पूर्वक अपनी बात समाप्त करता हूं और अगली मीटिंग के लिए मैं प्रस्थान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।